Hello, good morning student. Myself Darshan Parmar, and today we will discuss about unit number 2, module name masonry construction. In this subject building construction technology, in this video session we will discuss about stone masonry. So generally stone masonry having two types of classification. First one is a rubble masonry and second one is a एस्लर मेसनरी। तो इसमें दो टाइप के क्लासिफिकेशन है, पहला है रबल मेसनरी और दूसरा है एस्लर मेसनरी। तो रबल मेसनरी हम किसको बोलेंगे? इन द रबल मेसनरी द ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स आर यूज्ड आर आइदर अनड्रेस्ड और कंपैरेटिवली रफली ड्रेस्ड। द मेसनरी हैज वाइड जॉइंट्स सिंस स्टोन्स ऑफ इरेगुलर साइजेस आर यूज्ड। रबल मेसनरी में क्या है कि रबल मेसनरी में जो ब्लॉक्स ऑफ स्टोन है वो अनड्रेस्ड और कंपैरेटिव जो रफली ड्रेस्ड है उस टाइप्स के स्टोन रबली मेसनरी में रबल मेसनरी में यूज होता है। एंड जो मेसनरी है उसमें वाइड जॉइंट्स होते हैं ड्यू टू स्टोन्स इरेगुलर साइज, जो उसमें इरेगुलर साइज ऑफ स्टोन्स यूज होते हैं तो उस हिसाब से जो मेसनरी होता है उसमें वाइड जॉइंट्स होते हैं। ओके, सो रबल मेसनरी may be classified into three types. First one is coarse rubble masonry, second one is uncoarse rubble masonry, and third one is a dry rubble masonry. So today in this video session we will discuss one by one rubble masonry. So right now first one is a uncoarse rubble masonry. Okay, तो कोर्स रबल मेसनरी है उसको हम रैंडम रबर बिल्ट भी कह सकते हैं। ओके, सो जनरली रबल मेसनरी कैन बी सब डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज अ कोर्स रबल मेसनरी और रैंडम रबल मेसनरी, सेकंड वन इज ए अनकोर्स और रैंडम रबल मेसनरी, थर्ड वन इज ड्राई रबल मेसनरी। So right now this is the figure of coarse rubble masonry. तो coarse rubble masonry है उसमें क्या है? In this type of masonry the stones used are of widely different size and this is the roughest and cheapest form of stone masonry. In coarse random rubble masonry the masonry work is carried out in courses such that the stones in a particular course are of equal height. So अगर हम बात करें कोर्स रबल मेसनरी में तो here presented at a different size of rubble masonry are meeting at one point and size is differed from each and every stones. So रबल मेसनरी हमने यहाँ पे कोर्स रबल मेसनरी में देखा कि इसमें डिफरेंट साइज के स्टोन्स है वो अवेलेबल होंगे। And in this type masonry is slightly like as a superior to random rubble or uncoarse rubble masonry and roughly shows the course. Okay, so here this is a different shape and this is a different size of stones are available in coarse rubble masonry. The stones used for this masonry are hammer or chisel dressed. इसको hammer और chisel dress से थ्रू इसको हम कोर्स रबल मेसनरी दिया गया होगा। एंड द स्टोन्स आर नॉट सुटेबली शेप्ड और फिनिश्ड एंड द मेसनरी शोज irregular shaped stones with non-uniform joints in elevation. So the first stones are of uniform color and approximately equal in size. The height of stones should be greater than the length and width of tear into the wall. In coarse rubble masonry, at least 1/4 the stones should tail back into the hearting to obtain proper strength to the masonry. The quoins and thrown stones are provided as in random rubble masonry and the thickness of joint should not exceed 30 mm. So here we can put at the joint thickness not exceeded 30 mm and the cement mortar or lime mortar is used for the construction of masonry. Now
another is अनकोस्ट रबल मेसनरी, और उसको हम रैंडम रबल मेसनरी भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अनकोस्ट रबल मेसनरी होगा और रैंडम उसका दूसरा नाम है रैंडम रबल मेसनरी। इन दिस टाइप ऑफ मेसनरी द स्टोन्स यूज्ड आर ऑफ वाइडली डिफरेंट साइजेस। दिस इज द रफेस्ट एंड चीपेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोन मेसनरी। अनकोस्ट रबल मेसनरी is the roughest and cheapest form of stone masonry. In uncoarse random rubble masonry, the courses are not maintained regularly. The larger stones are laid first and the spaces between them are then filled up by means of spals or snicks. So in uncoarse random rubble masonry जो courses होते हैं वो मेंटेन रेगुलरली नहीं होते, डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं। जो लार्जर स्टोन्स है वो पहले हम उसको यहाँ पे पहले लार्जर स्टोन है उसको हम पहले रखते हैं, उसके बाद क्या होता है कि ये जो डिफरेंट स्मॉल साइज स्टोन्स है उसको हम यहाँ पे प्लेस कराते हैं। तो इसलिए इसको अनकोस्ट और रैंडम रबल मेसनरी है वो बोला जाता है। ओके, सो अनकोस्ट रबल मेसनरी इज द पुअरेस्ट एंड रफेस्ट टाइप ऑफ स्टोन मेसनरी। The stones to be used for the masonry are directly brought from the quarry and used for construction after merely knocking of weak corner and edges with the mason's hammer. In this type of masonry, the stones are laid at random, but the care is taken to break the joints. To avoid thick joints, the spals and chips are used into the hurting. The face stones selected for wall construction should have uniform color, uniform bed and greater size. 1/4 of the face stones should tail back in the hurting in the form of headers. The bond stones should also be provided to interlock the two faces and extended up to the full thickness of wall. The corner of the wall should be provided with cones and are laid as header and stretcher alternatively. The thickness of joint should not exceed 30 mm. So here we cannot apply the more than thickness more than 30 mm. Below 30 mm it is impossible in uncoarse rubble masonry. Okay. So third type is a dry rubble masonry. तो यहाँ पे ड्राई रबर here dry rubber masonry images are shown in this slide, and in dry rubber masonry in this type of masonry the construction is made to courses as well as similar to the ordinary rubber masonry without mortar. Here not a use for mortar, so it is known as dry rubber masonry, and this may be used for non-load bearing walls such as compound wall etc. So right now it is a dry rubble masonry. Why it is said dry rubble masonry? Because mortar is not used in the joints to fill up different types of stone and different size of stones. Here tempt gravel base, here larger stones on face is a first course set in trench, front wide and back wide. Okay. So dry rubble masonry, why dry rubble masonry we have to call it is because it here not a use mortar, so it is known as dry rubble masonry, and it is not a use for load bearing walls. Okay, so in this video we have to talk and we have to detail discussion in rubble masonry. Three types generally: coarse rubble masonry, uncoarse or random rubble masonry, and third one is a dry rubble masonry. Here कोर्स रबल मेसनरी में क्या है कि जो उसका एंड पोर्शन है और उसका जो यहाँ पे है डिफरेंट साइज में इनर स्पेसिस डिफरेंट स्मॉल साइज स्टोन्स आर प्रोवाइडेड, एंड हियर द बाउंड्री एज वेल एज पेरीफेरी बिग साइज एज कंपेयर टू इनर साइड वी हैव टू पुट द स्टोन एट आउटर पेरीफेरी. ओके, एंड in uncoarse rubble masonry in the starting area big size of stones are put at the starting, and after that we have to starting phase and we have to inner sides the different small sizes stones are put inner faces. Okay,
So third one is the dry rubble masonry. It is not used for load bearing and non load bearing walls and not a mortar used in the inner faces. Okay, now ashlar masonry. This is the ashlar masonry. What is the ashlar masonry? The stone masonry in which finely dressed stones are laid in cement or lime mortar. It is known as ashlar masonry. ashlar masonry हम किसको बोलेंगे? जो stone masonry है in which finely dressed stones are laid in cement or lime mortar, उसमें जो laid cement और lime mortar में जो stone masonry में finely dressed यूज करते हैं तो उसको हम बोलेंगे ashlar masonry. In this masonry all the joints are regular, thin and of uniform thickness. तो एस्लर मेसनरी की बात करें तो एस्लर मेसनरी में जो वहाँ पे जो जॉइंट्स हमने प्रोवाइड किए हैं वो रेगुलरली होंगे, उसके बाद उसकी थिकनेस होगी वो थिन होंगे एंड उसकी थिकनेस होगी वो यूनिफॉर्म होगी. दिस टाइप ऑफ मेसनरी इज कॉस्टली इन कंस्ट्रक्शन एज इन्वॉल्व्स हेवी कॉस्ट ऑफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स. इन एस्लर मेसनरी cost is a not economical as well as we have to say that कि उसमें जो इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म थिकनेस के स्टोन का ही हम यूज़ कर सकते हैं इसलिए. सो दिस टाइप्स ऑफ मेसनरी इज कॉस्टली इन कंस्ट्रक्शन एज इन्वॉल्व्स हेवी कॉस्ट ऑफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स. और उसका ड्रेसिंग भी अच्छे से होगा इसलिए इसका कॉस्ट है वो ज़्यादा होगा. दिस मेसनरी इज यूज्ड फॉर हेवी स्ट्रक्चर्स, आर्चेस, architectural buildings, high piers, abutments of bridges, etc. So जो स्टोन मेसनरी फाइनली ड्रेस्ड स्टोन्स होगा उसमें सीमेंट लाइम मोटर का यूज करते हैं उसको मेसलर मेसनरी बोलेंगे. एंड ये जो मेसनरी है उसमें जहाँ पे वो जॉइंट दिए गए वो रेगुलर होगा, थिन होगा एंड यूनिफॉर्म थिकनेस में होगा. दिस टाइप ऑफ मेसनरी इज कॉस्टली इन कंस्ट्रक्शन as involves heavy cost of dressing of stones. This masonry is used for heavy structures, arches, architectural buildings, high piers, abutments of bridge, etc. This is the figure of ashlar fine masonry. Here, bigger size of and as well as dressed stones are placed in the ashlar masonry. Okay. So this is the figure of ashlar fine masonry. Now in this type ashlar masonry each stone is cut to uniform size and shaped with all sides rectangular so that the stone gives perfectly horizontal and vertical joints with adjoining stone. So ashlar fine masonry में दिस टाइप्स ऑफ एस्लर मेसनरी इज वेरी कॉस्टली. जो एस्लर मेसनरी की बात की हमने तो एस्लर मेसनरी है उसमें डिफरेंट टाइप्स है एस्लर मेसनरी के. तो एस्लर मेसनरी कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स लाइक एज एस्लर फाइन, एस्लर रफ टूल, एस्लर रॉक रस्टिक और कोरीफेस्ट, एस्लर चैम्फर्ड एंड एस्लर फेसिंग. ओके. एंड हाइट ऑफ स्टोन वेरीज फ्रॉम एस्लर मेसनरी 25 to 30 centimeter and the height of blocks in each course is kept equal. Okay. So now ashlar fine. In this type of masonry all the stones are cut to regular and required size and shape. Stones give perfectly horizontal and vertical joints. Okay. The bed and side joints are face chisel dressed and a fairly smooth surface is obtained. Here chisel के द्वारा chisel ड्रेस से यूज करके हम इसका जो सरफेस है उसको हम स्मूथ रख सकते हैं. एंड जो हाइट ऑफ कोर्स है वो 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए. एंड जो उसका कोर्स है ऑल कोर्स है वो क्या है उसमें कि भाई उसका जो हाइट है वो थ्रू आउट वर्क में सेम होगा. और वॉल्स बिलो 75 सेंटीमीटर थिकनेस द थ्रू स्टोन्स एक्सटेंड टू द full thickness of wall. The thickness of mortar joint is kept uniform
थ्रू आउट एंड इट शुड नेवर एक्सीड 5 mm। जो थिकनेस ऑफ मोर्टार जॉइंट है उसको हम यूनिफॉर्मली थ्रू आउट रखते हैं एंड इट शुड नेवर, और 5 mm से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ second one is a Esler rough masonry. In this type of Esler masonry, the beds and sides are finely chiseled, but the face is made rough by means of tools. A strip about 25 mm wide and made by means of chisel is provided around the perimeter of the rough dressed face of each stone. In this type of Esler masonry, the beds and sides are finely chiseled, but the face is made rough by means of tools. A strip about 25 mm wide and made by means of chisel is provided around the perimeter of the rough dressed face of each stone. और इसको हम बोलते हैं Esler rough masonry. Okay, so now third type is rock and quarry faced. Here rock and quarry का यूज हम करते हैं, इसलिए इसको rock and quarry faced भी कहा गया है। In this type of Esler masonry, a strip about 25 mm wide and made by means of chisel is provided around the perimeter of every stone, as in case of rough tool Esler masonry. So एस्लर मेसनरी में जो स्ट्रिप 25 mm की वाइड एंड मेड बाय मीन्स ऑफ चिजल के द्वारा जो प्रोवाइड अराउंड द पेरीमीटर ऑफ एवरी स्टोन है, अराउंड द पेरीमीटर ऑफ एवरी स्टोन, इन केस ऑफ रफ टूल एस्लर मेसनरी उसका यूज किया गया है। बट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फेस इज लेफ्ट इन द सेम फॉर्म एज रिसीव्ड फ्रॉम क्वेरी। आफ्टर दैट फोर्थ टाइप इज एस्लर चेम्फर्ड मेसनरी। हियर क्या होगा कि इस तरीके से सभी स्टोन है उसमें चेम्फर किया गया होगा, तो इसलिए इस मेसनरी को हम एस्लर चेम्फर्ड मेसनरी बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एस्लर मेसनरी द स्ट्रिप इज प्रोवाइडेड एज बिलो। यहाँ पे स्ट्रिप प्रोवाइडेड की गई है, बट इट इज चेम्फर्ड और बिवेल्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज बाय मीन्स ऑफ चिजल फॉर ए डेप्थ ऑफ अबाउट 25 mm। यहाँ पे 45 डिग्री की चेम्फर्ड और बिवेल 45 डिग्री का दिया गया है, और जो मीन्स ऑफ चिजल और डेप्थ है वो उसका 25 mm रखा गया है। आफ्टर दैट एस्लर ब्लॉक इन कोर्स मेसनरी। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ रबल मेसनरी एंड एस्लर मेसनरी। हियर एस्लर ब्लॉक इन कोर्स मेसनरी, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ rubble masonry and Esler masonry. In this type of masonry, the face work is provided with rough tooled or hammer dresses, stones, and baking of the wall may be made in rubble masonry. Here, Esler block in coarse masonry. This is combination of rubble masonry and Esler masonry. यहाँ पे rubble masonry and Esler masonry का दोनों का combination है। And in this type of masonry, the face work is provided with rough tool or hammer dresses, stones, and baking of the wall may be made in rubble masonry. तो उसका जो baking portion है वो rubble masonry का यूज उसमें किया गया है। ओके, सो यहाँ पे एस्लर ब्लॉक इन कोर्स मेसनरी में रबल मेसनरी एज वेल एज एस्लर मेसनरी का कॉम्बिनेशन होगा। ओके, और फेस वर्क जो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है वो रफ टूल और हिमर ड्रेसेस, स्टोन्स का यूज उसमें किया गया है, और बेकिंग ऑफ वॉल है वो भी रबल मेसनरी का ही, यहाँ पे जो है बेकिंग ऑफ वॉल वो भी रबल मेसनरी का ही यूज किया गया होगा। उसके बाद एस्लर फेसिंग मेसनरी। तो एस्लर फेसिंग मेसनरी है, उसमें क्या है कि इफ द बेकिंग इज ऑफ रबल मेसनरी इट इज कॉल्ड रबल एस्लर, एंड if the baking is of brickwork the masonry is termed as brick esler. Okay, so here यहाँ पे हमने जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है तो उसमें इसका बेकिंग जो रबल मेसनरी है उसमें जो बेकिंग है वो रबल एस्लर, तो उसको रबल एस्लर बोलेंगे। और यहाँ पे जो ब्रिक, इफ द बेकिंग इज ऑफ ब्रिक, जो ब्रिक वर्क हमने
किया गया है और उसका जो बेकिंग है वो ब्रिक वर्क में यहाँ पे होगा, तो वो मेसनरी को हम ब्रिक एस्लर यानी कि इसको ब्रिक एस्लर हम बोलेंगे, और यहाँ पे जो ये है उसको हम रबल एस्लर बोलेंगे। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा कि इस वीडियो लेक्चर में 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन था। पहला वाला रबल मेसनरी और दूसरा वाला एस्लर मेसनरी। रबल मेसनरी में क्या है कि जनरली नोट ए प्रॉपर साइज ऑफ स्टोन्स एंड स्मॉल साइज ऑफ स्टोन से उसका हम यूज करते हैं मेसनरी में, तो उसको हम कोस्ट रबल मेसनरी, अनकोस्ट और रैंडम रबल मेसनरी एंड ड्राई रबल मेसनरी 3 टाइप्स में रबल मेसनरी में डिवाइड किया। कोस्ट रबल मेसनरी में क्या था कि कोस्ट रबल मेसनरी था इस तरीके से, उसमें जो यहाँ पे जो पेरीफेरी वहाँ पे बिग साइज के स्टोन और जो आउटर पेरीफेरी थी यहाँ पे, तो उसमें वहाँ पे बिग साइज के स्टोन और इनर साइड में स्मॉल टाइप के स्टोन्स था, उसका यूज हम कोस्ट रबल मेसनरी में करते थे। ओके, अनकोस्ट रबल मेसनरी में क्या है कि अनकोस्ट रबल मेसनरी में उसका जो यहाँ पे टोटली पेरीफेरी है, इसके अंदर सिमिलर एंड स्मॉल साइज ऑफ स्टोन्स का ही एक लेवर हम रखते हैं, और जो यहाँ पे स्टार्टिंग फेज है उसमें क्या है कि स्टार्टिंग फेज में यहाँ पे बिग साइज ऑफ स्टोन्स है उसको हम प्रोवाइड करते हैं, और जब हम इनर साइड्स की बात करें तो वहाँ पे स्मॉल साइज के स्टोन से उसका यूज होता है। नाउ थर्ड वन इज अ ड्राई रबल मेसनरी। तो दिस इज द नॉन लोड बेरिंग वॉल्स एंड मोटार्स आर नॉट प्लेस्ड इन द इनर साइड ऑफ अ रबल मेसनरी, सो इट इज नोन एज ड्राई रबल मेसनरी। नाउ एस्लर मेसनरी, द स्टोन मेसनरी फाइनली ड्रेस, तो उसको एस्लर मेसनरी कहेंगे। एस्लर मेसनरी में उसके टाइप थे एस्लर फाइन मेसनरी, तो इस तरीके से जो यूज होता है तो उसके एस्लर फाइन मेसनरी हम कहते थे। ओके, उसके बाद एस्लर रफ मेसनरी। एस्लर मेसनरी होगी लेकिन यहाँ पे जो इसका ए पोर्शन है वो रफ रहता है, तो इसलिए उसको हम एस्लर रफ मेसनरी कहते हैं। उसके बाद रॉक एंड क्वेरी फेस, तो यहाँ पे जो स्टोन्स है वो रॉक और क्वेरी जो लगाया गया है और वहाँ पे इनर में मोटर प्लेस्ड किया गया, तो उसको रॉक एंड क्वेरी फेस्ड एस्लर मेसनरी बोल सकते हैं। उसके बाद एस्लर चेम्फर्ड मेसनरी, तो इस तरीके से ये मेसनरी वर्क किया गया है, और ये बी वेल्ड और ये यहाँ पे चेम्फर लगाया गया है 45 डिग्री और डेप्थ है उसका 25 mm रखा गया है, तो इसलिए इसको हम एस्लर चेम्फर्ड मेसनरी बोलेंगे। इसके बाद एस्लर ब्रोक इन कोर्स मेसनरी, तो यहाँ पे रबल मेसनरी और एस्लर मेसनरी दोनों का यूज होता है। तो इस टाइप ऑफ मेसनरी उसका जो फेस वर्क है वो रब टूल से और हैमर से ड्रेस स्टोन्स के किया गया। उसका जो बेकिंग ऑफ वॉल है वो रबल मेसनरी का, यहाँ पे जो बेकिंग ऑफ वॉल है वो किसका होगा, तो वो रबल मेसनरी का होता है। ओके, उसके बाद एस्लर फेसिंग मेसनरी, तो एस्लर फेसिंग मेसनरी की बात की जाए तो यहाँ पे एस्लर फेसिंग मेसनरी में इफ द बेकिंग इज ऑफ रबल मेसनरी का जो बेकिंग होगा तो उसको हम रबल एस्लर बोलेंगे, और इफ द बेकिंग इज ऑफ ब्रिक वर्क, तो ब्रिक वर्क का जो उसका बेकिंग होगा तो उसको हम ब्रिक एस्लर बोलेंगे। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ पे ब्रिक में रबल मेसनरी, रैंडम रबल मेसनरी उसके बारे में डिस्कशन की, और एस्लर मेसनरी उसके बारे में डिस्कशन की। ओके, इस वीडियो लेक्चर को हम यहाँ पे ओवर करते हैं। थैंक यू।